हेलो एवरीवन। आखिरकार जेई 2025 एडवांस पेपर 18th ऑफ मई 2025 को हो ही गया और बहुत ही रिलेवेंट पेपर आया। बहुत अच्छा केमिस्ट्री का पेपर आया। अच्छे का ये मतलब कभी भी नहीं होता है कि पेपर शुड बी आउट ऑफ सिलेबस, शुड बी वेरी टफ। अच्छे का मतलब ही ये होता है कि पेपर आपके डिफाइंड सिलेबस जो उन्होंने कहा था उसमें से आए, फंडामेंटल से आए, बेसिक से बने, मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ सिलेबस को कवर करे और आपकी अटेंटिवनेस, फोकस, पेशेंस एंड टाइम मैनेजमेंट को चेक करता हुआ चले। तो कुछ इसी तरह का पेपर जो है 2025 केमिस्ट्री का एडवांस पेपर है और इसी को हम आज यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पेपर 2 फ्लो के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर। फर्स्ट रूल ऑफ doing any exam, rule of approaching any exam is always reading the instructions carefully. That is a compulsory thing. So section 1 is of 12 marks and it is said that out of 4 options only one is going to be the correct one, and for each question we have to choose the correct answer. It has a negative marking of -3 and +3 if you select the correct option out of the 4, and 0 for all other possibilities that you can lead to. So first question is of salt analysis. Now let us see what is the question. During sodium nitroprusside test of sulfide ion in an aqueous solution, one of the ligands coordinated to the metal ion, so it is already coordinated to the metal ion, is converted to, right? So this is the sodium nitroprusside test which is given in your lab manual. First हम इसे देखते हैं, फिर हम कुछ और बातें करेंगे. If the salt is soluble in water, take the solution of salt in water, make it alkaline, because we need relatively high concentration of sulfide to have this reaction with ammonium hydroxide, and add sodium nitroprusside Na2FeCN5NO solution. If it is insoluble in water, take sodium carbonate extract and add a few drops of sodium nitroprusside solution. Purple or violet coloration due to the formation of complex compound Na4FeCN5NOS confirms the presence of sulfide ion in the salt. This is what is responsible for the purple color. Now the question is how this ligand, which was already coordinated to iron, is changing. So it is changing to NOS. But yes, the actual reaction involved is said to be acid-base reaction. Now what happens is NO positive, it is acting as a Lewis acid, and sulfide ions, S2 minus ions acting as a Lewis base, they interact, they react, और जो resultant अब species बन रही है, it is equivalent to what we call salt. तो जैसे आप NaCl लिखते हैं, कटायन का पहले जिक्र करते हैं, अनायन का बाद में, तो इसे भी इसी वजह से आप NOS माइनस कहते हैं, राइट? बट इस NOS माइनस का अगर हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर डिपिक्ट करना चाहें तो सल्फाइड बीइंग अ डोनर टू नाइट्रोजन, एंड इन फैक्ट नाइट्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज, नाइट्रोसोनियम आयन है ये. सल्फाइड बीइंग 2 माइनस, ये इस तरीके का कोऑर्डिनेट बना हुआ है. व्हेन वी रिप्लेस दिस विथ प्लस माइनस चार्जेस, आई कैन राइट इट एज एन. कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करना है मुझे, तो सल्फर इज माइनस एंड नाइट्रोजन अब न्यूट्रल हो चुका है. एंड यस, इट कैन शो रेजोनेंस, ये यहीं पर ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड सल्फर. इस तरीके का ये स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग लिगेंड है. लेकिन इस पूरी प्रोसेस में डोनेशन जो है वो हमेशा इस नाइट्रोजन की लोन पेयर का ही है टुवर्ड्स आयरन. Iron is the central metal ion accepting the lone pair from these
नाइट्रोजन एटम्स जो मैं मार्क करती चली जा रही हूँ। लेकिन जैसे आप एक एसिड बेस रिएक्शन के रिजल्ट सॉल्ट को लिखने का कन्वेंशन फॉलो करते हैं, कटायन फॉलोड बाय अनायन, उसी तरह से इस स्पीसीज को भी हमें यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो है ए, NOS माइनस, राइट। So let's move to question number 2. So question number 2, the complete hydrolysis of ICl, ClF3 and BrF5 respectively gives. तो ये क्वेश्चन वैसे इतना आसान नहीं है, बट ऑप्शंस को अगर हम देखें और सिंगल करेक्ट की बात हो रही है, so we can guess that what is the best possible answer, because if you study here, if we discuss about ICl, since chlorine is more electronegative, तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है और आयोडीन के ऊपर +1 चार्ज है. In case of ClF3, chlorine is more electronegative, so fluorine has -1 oxidation state and chlorine has +3 oxidation state. Similarly, in case of BrF5, क्लोरीन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है. So these are the oxidation state of different halogen atoms in these interhalogen compounds, right? But when we discuss hydrolysis, like in several books, when we are talking about hydrolysis of ClF3 and BrF3, then they will oxidize water to oxygen gas also, right? Because ClF3 is very reactive, very good fluorinating agent. But if we look to the question and the options given, we'll solve the question in a very simple way. Here we can say that अगर ICl जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है, तो वाटर में हम कह सकते हैं कि वी कैन ब्रेक दिस वाटर एज H+ and OH-. So this I+ is going to attach with OH-, right? So we can write that this is equal to IOH, and the H+ is going to attach with Cl-, so HCl is going to form. Similarly, in case of ClF3, अभी हम जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके हिसाब से इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखें. So now chlorine here is present in +3 oxidation state, so it is going to form the oxy acid of chlorine, in which chlorine is present in +3 oxidation state. तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ये HClO2 होना चाहिए. Means this whole molecule is going to react with 2 water molecule to form 3 HF molecules and 1 molecule of HClO2. And if we discuss about BrF5, BrF5 is going to react with water, and again here the bromine, which is present in +5, will form corresponding oxy acid. So we can write that oxy acid will be HBrO3, that is bromic acid, plus here 3 water molecules will react and there is formation of 5 HF molecules. तो अभी अगर हम इसमें करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स के एनायन को लिखें तो इससे IO- आयन आएगा, एंड हियर इट विल बी ClO2- आयन, एंड हियर BrO3- आयन. तो अभी अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है और ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो बड़े सिंपल ऑप्शंस दे रखे हैं. अदरवाइज इफ वी गो इन डेप्थ, ClF3 या BrF3 जो है जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं दे विल ऑक्सीडाइज वाटर इनटू O2 गैस, and the Cl is not present in the form of HClO2, it will further converted into Cl- ion. But since the options given are very simple, and if we go according to the options, A option will be the answer for this. Let us move to question number 3. A organic का question है, madam is going to discuss. So coming to question number 3, monocyclic compounds P, Q, R and S are the major products formed in the reaction sequences given below. यहाँ पर रिएक्शन सीक्वेंसेस हैं और हमें एक चीज कही गई है कि कीप द स्ट्रक्चर्स और द प्रोडक्ट्स एज मोनोसाइक्लिक. ओके, अब इन सभी को हमें चेक करना है, एंड देन द प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स. अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स की काउंट किसके पास सबसे ज्यादा है ये हमें
इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट पी का फॉर्मेशन, ब्रोमीन एंड रेड फॉस्फोरस इज वेरी फेमस रिएक्शन HVZ, Hell-Wohlhard-Zielinski's reaction, which is the reaction for alpha halogenation. So after HVZ, ब्रोमिन यहाँ अटैच किया गया है, राइट? और उसके बाद फॉलोड बाय वाटर. वाटर अलोन विल नॉट सब्स्टिट्यूट ब्रोमिन, राइट? सो आई लीव टू दिस एट P, कि ये हमारा P होगा. सेकेंड, एक्वस NaOH एट 293 केल्विन, यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन नेम रिएक्शन यूज करी गई है. अगर आप पेपर 1 और 2 को कंबाइन करें तो आपको ऐसा लगेगा लगभग जितनी भी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम NCERT में पाते हैं उन सभी का कहीं ना कहीं यूज करके बड़ा बैलेंस सा पेपर बना है. सो अल्डोल क्या होता है, यहाँ से हम जो CH2 अगर मैं लिखूं, ये H2O गया, राइट? एंड वील हैव PHCH, CHCHO, राइट? दिस इज व्हाट इज फॉर्म कॉल्ड सिन्नामाल्डिहाइड. ये हमारा Q का स्ट्रक्चर बना है, ये हमारा P का स्ट्रक्चर बना है. नाउ NaNH2 और फिर सब्स्टिट्यूशन. तो पहले NaNH2 विल डू द एसिड बेस रिएक्शन. R के लिए जो भी सीक्वेंसिंग है मैं यहाँ लिखना शुरू कर रही हूँ. PHC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2, तो ये बनेगा PHC ट्रिपल बॉन्ड CNA. अब इसकी रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड से कराई गई, SN2 PHC ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. नाउ कुछ रो रिएक्शन दिया गया है, Hg2 प्लस एंड H3O प्लस, तो साइक्लिक मर्क्यूरिनियम बनेगा. C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH double bond CH2. This is what I expect to be R. Yes, H3O plus दिया है तो यहाँ डबल बॉन्ड पर भी वाटर एडिशन की पॉसिबिलिटी थी. ठीक, हम अगर उसे ना भी लें और आगे बढ़े, ओजोनोलिसिस कमिंग टू S. यहाँ अगर सबसे पहले ओजोनोलिसिस किया गया है, S की सिंथेसिस की अब बात की जा रही है, तो ओजोनोलिसिस करते हैं तो डबल बॉन्ड O CHO. अब 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ CH3 MgBr दिए हुए हैं, इसका मतलब दोनों ही जगह पर अलग अलग इनका इस्तेमाल हमें करना है. और फॉलोड बाय H प्लस, अभी हीट नहीं दे रही हूँ, सिर्फ H प्लस यहाँ तक मैं पहले लेकर आऊँ, तो ये OH यहाँ बन जाएगा, राइट? कीटोन पर ग्रिग्नार्ड के अटैक से 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है और अल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड के अटैक से 2 डिग्री अल्कोहल बना. बट क्योंकि स्पेसिफिकली H प्लस एंड हीट गिवन है, इसका मतलब है एलिमिनेशन कराने की बात अगर कही गई है, तो आई विल डू द एलिमिनेशन लाइक दिस. और अब अगर मैं बेंजीन को एक तरफ कॉमन ही सब में कंसिडर करते हुए छोड़ दूं, तो मेरे को क्लियर नजर आ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स 1, 2, 3 एंड 4 आर इन S स्ट्रक्चर, राइट? और S स्ट्रक्चर में अगर ये हैं तो आंसर हमारा होना चाहिए D. Answer for question number 3rd is D, that is the maximum number of unsaturated carbon atom in the product. Coming to question number 4, the correct reaction or reaction sequence that would produce a dicarboxylic acid as the major product. So there may be other products, we need not to consider them, right? Let's start with option A. एक एक करके हम
शुरुआत करते हैं। ऑप्शन ए में हमारे पास ClOH, सबसे पहले NaCN। NaCN है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और chlorine will be replaced by cyanogen. Now it is hydrolysis under alkaline condition. So I wouldn't say the situation is perfect because heat वगैरह चाहिए, otherwise reaction may stop at amide stage. But sometimes taking the question by the feel, है ना, perfection हम ना भी ढूंढें तो end product जो हमारा आफ्टर H3O प्लस यहाँ आ रहा है एज ए का प्रोडक्ट, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, तो ए कैनॉट बी द आंसर। मूविंग टू बी, नाउ बी इज अ मोनोसेक्राइड गिवन CHOH4, क्योंकि स्टीरियो डिफाइन नहीं है इसलिए आई कैन नॉट यूज द टर्म ग्लूकोज, राइट। जब स्टीरियो डिफाइन नहीं है तो मैं ग्लूकोज टर्म नहीं यूज कर सकती, बट हाँ रेफरेंस रिएक्शन बिल्कुल ग्लूकोज की ही है, क्योंकि जो भी हमें यहाँ दिया है इट इज अल्डोहेक्सोज, राइट। 4, 5, 6 कार्बन है, अल्डोज शुगर है, और अल्डोज शुगर के लिए स्पेशल POC या प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर से इस्तेमाल करते हैं। ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड, राइट। आपको सिर्फ अल्डिहाइड एंड का ऑक्सीडेशन मिलता है और अल्डोज शुगर्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू अल्डोनिक एसिड्स विच आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। HNO3 अगर आप यूज करते हैं तो अल्डेरिक एसिड बनता है विच आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगेन द पॉइंट इज क्वेश्चन इज आस्किंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, आई एम हैविंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो बी भी मुझे सूटेबल आंसर नहीं है। सी पर बढ़ते हैं। सी में स्टार्टिंग इज विथ ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, KOH और इथेनॉल लिखना, ये क्या हो गया, अल्कोहलिक KOH। दिस इज एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन करने से हमें यहाँ साइक्लोहेक्सीन मिलेगी। इसके बाद हमें कहा गया है H2SO4, KMnO4 मतलब एसिडिफाइड KMnO4, और हीट गिवन है। आपको पता है कि जब भी एसिडिक KMnO4 में आप अल्कीन्स को हीट करते हैं तो दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एट बोथ एंड्स, जहां पर आपकी इस तरह की सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रही है। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड में स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ एक और सब्स्टिट्यूशन होता तो आई वुड हैव हैड अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीटोन एंड एसिड, और फिर मुझे उसके आगे अलग से कुछ बातें ऐड करनी पड़ती कि क्या वो एसिड में जाएगा नहीं जाएगा। यहाँ इतनी डिटेल की बात नहीं करी गई है। तो सी में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना, और सिंगल करेक्ट है क्वेश्चन, तो आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पर आंसर सी और करके हम रुक सकते हैं। बट एनीवेज डी की अभी एक बार और बात कर ली जाए। डी में हमें OH डबल बॉन्ड, कीटोन्स आर नॉट दैट इजी टू ऑक्सीडाइज, क्योंकि वहां आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा फॉर ऑक्सीडेशन, बल्कि उसकी जगह ये जो प्राइमरी अल्कोहल एंड आपका है ये बहुत इजी ऑक्सीडेशन का केस बनेगा, क्योंकि ये पहले एल्डिहाइड में जाएगा, और एल्डिहाइड तो आप जानते ही हैं टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ब्रोमिन वाटर से अल्डोज को अभी मैंने आपके सामने ऑक्सीडाइज करा ही है, तो ये COH हमारा एक फिर से यहाँ OH की जगह बनेगा, बट स्टिल इट इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सो आंसर के लिए जो सूटेबल ऑप्शन हमारे पास बचा फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज C। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 2। सेक्शन 2 मल्टी करेक्ट है, और आप इसमें देख ही रहे हैं कि मार्किंग इज नेगेटिव मार्किंग भी है -2 की, राइट, और पार्शियल मार्क्स भी हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द ऑप्शंस। तो ये जो क्वेश्चन है हम इसको कह सकते हैं ये गैसियस स्टेट का क्वेश्चन है, या कुछ लोग इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस करते हैं, राइट। सो द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज आर,
तो सबसे पहले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको कहा जाता है, बट यहाँ जब वो ऑप्शंस जो हम देख रहे हैं उसमें दे आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट ओनली मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन, दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट ओके, लेट अस गो थ्रू द ऑप्शन एंड देन विल डिस्कस, राइट। तो हमें ये पता है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि जितनी भी तरह की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं, तीन तरह की मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। फर्स्ट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको हम कीसम फोर्सेस भी कहते हैं। द सेकेंड वन इज dipole induced dipole interaction, that is known as Debye forces, and induced dipole interaction which is known as London dispersion forces. तो जितने भी मॉलिकुलर इंटरेक्शंस हैं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ only in case of dipole dipole interaction when the molecule exists in solid or liquid state where hydrogen bonding is there. So when the molecule is stationary, in that case we'll say that the potential energy is directly proportional to 1/r⁴. So that is given in NCERT, right? So let us go through the option. जैसे इसमें पहला जो ऑप्शन है वो NCERT में मेंशन नहीं है. The potential energy between 2 point charges approaches zero more rapidly than the potential energy between a point dipole and a point charge as the distance between them approaches infinity. तो हमें पहला पॉइंट तो पता है, राइट, क्योंकि जब हम पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं तो दे विल फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एंड वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, सपोज इफ आई एम सेइंग दैट दिस चार्ज पार्टिकल इज q1 एंड दिस चार्ज पार्टिकल इज q2, so we'll say that the potential energy is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r, और potential energy is directly proportional to 1/r. इस तरह से potential energy का variation होता है when we are discussing between 2 point charge particles, right? Now they are saying that कि अभी हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और एक डाइपोल है. They are discussing ion dipole force of interaction. So in case of ion dipole force of interaction, the potential energy is directly proportional to 1/r⁴. And in case of ion, और ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, तो वी कैन से दैट इंड्यूस्ड डायपोल, ion induced dipole type of interaction is not molecular interaction, but ion induced dipole interaction की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में potential energy is directly proportional to 1/r⁴. तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होगी, बट अगर आपने ये पढ़ रखा है देन इट इज फाइन, देन देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाइल आंसरिंग द ए पार्ट. अब ए पार्ट की अगर हम आंसरिंग करें तो पहले पार्ट में दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन. सो वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी अगर y है और 1/r अगर x है, तो x y इज सम वैल्यू, राइट, सम कांस्टेंट आई कैन राइट हियर. x y इस किस तरह से ये वैरी करेगा, वी आर डिस्कसिंग लाइक दैट when we are discussing between ion and dipole, because they are saying between a point dipole and a point charge. तो ion dipole force of interaction में पोटेंशियल एनर्जी अगर y है तो r की वैल्यू अगर हम x रखते हैं तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, राइट. तो हियर द वेरिएशन एज वी मूव अवे, ये वाला जो ग्राफ होगा, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बड़ा करेंगे y की वैल्यू में ज्यादा वेरिएशन आएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर. तो एज वी गो अवे, the change in the value of y will be faster than that of x. They are saying that the potential energy between the 2 point charges approaches zero more rapidly than the potential energy between a point dipole and point charge as the distance between them approaches infinity. So this statement is false. ये पहला जो statement है ये false है. Mathematically हम conclude कर सकते हैं with the help of these data. ठीक है. अब B ऑप्शन पे आते हैं. B ऑप्शन हम NCERT की मदद से इसको बता सकते हैं. यहां इन्होंने लिखा है कि रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स है तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴. अगर ये स्टेशनरी होता देन पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴. तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया, बी इज रॉन्ग. मूविंग टू द सी ऑप्शन,
the dipole induced dipole average interaction energy is independent of temperature. ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है अगर यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता वो डाइपोल डाइपोल टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता. when there is dipole dipole type of interaction, then we can say that the potential energy is inversely proportional to temperature. But that is valid when the interaction is dipole dipole type of interaction. But if it is dipole induced dipole type of interaction, then the variation of potential energy is independent of temperature. Again, this is a difficult thing not given in NCERT. तो अगर आपने कहीं से पहले से पढ़ रखा है, लाइक बहुत सारी किताबों में दे रखा है, असीम के दास वॉल्यूम 3 में इट इज गिवन अबाउट हाउ द वेरिएशन, लाइक लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस जो है वो इंड्यूस्ड डायपोल टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट. एंड देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिबाई फोर्सेस विच इज डायपोल induced dipole force of attraction. It is also independent of temperature. But when we discuss about Keesom forces, which is dipole force of interaction, it depends on temperature. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट. डी ऑप्शन तो आप अपनी एनसीईआरटी की नॉलेज से आप इसको बता सकते हो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर इवन दो नाइदर हैज अ परमानेंट डायपोल मोमेंट. यस, that is known as London forces, London dispersion forces, induced dipole force of attraction. So the D option is correct. Answer for this will be C and D. C और D option जो है वो correct होगा. तो already हमने अपने notes में इसको discuss किया हुआ है, ठीक है. These things are given. तो ये सारी चीज़ें हैं. अगर आपको ये information पता है तो इसका आंसर दे सकते हो. At least based on NCERT, एटलीस्ट यू कैन गिव डी ऑप्शन, तो आपको 1 मार्क्स मिलते. अगर आपको सी ऑप्शन भी पता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. सो रिलेटिवली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नॉलेज. अगर आपको है पहले से तो यू कैन आंसर, अदरवाइज इट इज़ डिफिकल्ट टू आंसर, राइट. सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है आपको कि ये किस बुक में दे रखा है, राइट. वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कीसम फोर्सेस, यू कैन सी हियर दैट दिस कीसम इंटरैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जबकि अगर हम डिबाई और लंदन फोर्सेस की बात करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट. सो दे आर टॉकिंग अबाउट हियर डिबाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. डिबाई फोर्सेस की बात हो रही है इस ऑप्शन में, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. सिमिलरली वी कैन से अबाउट द लंदन फोर्सेस आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इफ यू सी दीज आर लंदन इंटरैक्शन एनर्जी इन लंदन फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये आसान प्रॉब्लम थी और आप सभी इसको सॉल्व कर पाए होंगे बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. तो यू नो दैट जो पहला ऑप्शन है फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, फॉस्फोरिक एसिड की जो बेसिसिटी है वो 3 है, मीन्स देर आर 3 OH ग्रुप अटैच टू दिस फॉस्फोरस एटम. और अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो दिस विल बी वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो यहाँ कोई भी फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है. द सेकेंड वन इज फॉस्फोरस एसिड, बेसिसिटी इज 2, देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड with hydrogen atom and there is 1 hydrogen atom directly attached to the phosphorus atom. So ये इसका स्ट्रक्चर है. तो फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉस्फोरस एसिड में है. The next option is pyrophosphoric acid. If we draw the structure of pyrophosphoric acid, क्या करते हैं हम 2 मॉलिक्यूल में से अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, 2 molecules of phosphoric acid, if we remove 1 water molecule, then we can write this is H2 H4P2 H4P2O7. इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर. देयर इज POP बॉन्ड, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इस तरह से इक एसिड है तो कोई भी फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा इसमें. दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, सो देयर इज नो फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस, राइट. तो सी ऑप्शन नहीं होगा. डी ऑप्शन मेटाफॉस्फोरिक एसिड, there are 2 hydrogen atom directly attached with phosphorus atom, and because of this phosphorus hydrogen bond metaphosphoric acid is a very good reducing agent. तो जिन acids में phosphorus hydrogen bonds होते हैं they are very good reducing agent. So answer for this will be B and D. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड सारे बच्चों ने इसको कर ही दिया होगा, राइट.
तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे Question number 7. For the reaction sequence given below, the correct statements is or are. सबसे पहले हमें सीक्वेंस पर ही ध्यान देना होगा. सोल्यूशन बनाते हैं. This is reacted with KMnO4, acidified and heat. All of you must be aware that anything attached to benzene till it has one hydrogen, talking of sp3 carbons, सब कुछ ऑक्सीडाइज होकर और सिर्फ COH पर ही आकर रुकता है. मतलब यहाँ से भी ये टुकड़ा हट जाएगा और ये पीस भी हटेगा and we'll get phthalic acid. Now this is treated with ammonia heat. हिंट जो दी गई है कि -2H2O, राइट, -2H2O की हिंट हमें दी है. बाद में फिर से स्ट्रॉन्ग हीटिंग का जिक्र किया गया है. अगर आपने NCERT ध्यान से पढ़ी हो तो किस तरीके से उन्होंने इंडिविजुअली पहले अमाइड बनाने के लिए कहा गया, थैलामाइड. ओके, ये हमने क्या बनाया, थैलामाइड. हीट नहीं करते हैं तो सिर्फ अमोनियम सॉल्ट बनते हैं दोनों तरफ, और ये बना आपका X. अब इसको कहा गया है स्ट्रॉन्ग हीटिंग. बिल्कुल यही की यही भाषा आपको NCERT कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में मिल जाएगी. स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर दिस कंपाउंड विल फॉर्म थैलीमाइड. ये आपका बना थैलीमाइड. ओके, नाउ दिस थैलीमाइड इज treated with ethanolic KOH. Okay, so KOH in alcohol, I can say acid base reaction will take place. CON minus K plus, and then it is treated with RBr SN2. As a result of SN2, N-alkylated thalidomide is formed. इसका नाम यहाँ पर कहा गया है Y. अब Y को ट्रीट किया गया NaOH के साथ. मैं इस NaOH को एक्वस मान लेती हूँ कि हाइड्रोलिसिस किया गया है, तो एक हिस्सा तो मेरा RNH2 बनेगा और कंडीशंस आर अल्कलाइन, तो मैं COO माइनस और COO माइनस थैलिक एसिड सॉल्ट को कंसिडर करूंगी. एरोमेटिक कंपाउंड तो ये हो गया, तो Z नाम मैं इसे असाइन करती हूँ. अब मैं ऑप्शंस की तरफ बढ़ती हूँ. पहला ऑप्शन, बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड. लेट अस सर्च. X यस, Y ऑक्सीजन है, एक अमाइड है, एक एन एल्काइलेटेड थैलीमाइड है, बट दोनों के पास ऑक्सीजन है. Y, सर्च Y. ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड QH forms isocyanide. Well, that is false because this is the test for this is कार्बिलअमीन रिएक्शन की बात की गई है. ये तो प्राइमरी अमीन के लिए एप्लीकेबल है. RNH2 जब होता क्लोरोफॉर्म एंड KOH, तब आप RNC के बनने की बात कर सकते हैं. ये तो इमाइड है, तो Y के लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं है. Z reacts, where is Z? Okay, it is a primary amine. Z reacts with Hinsberg reagent, certainly, very much. All primary, secondary, both types of amines do react with Hinsberg reagent, right? PHSO2Cl या फिर टोसाइल क्लोराइड, जो भी आप कंसिडर करें. Z is an aromatic primary amine. Well, it is not an aromatic primary amine. Yes, it is primary amine, but not aromatic. So we will limit our answer for this question to A and C. Answer for question number 7 is A and C. So moving to question number 8. Question number 8. For the reaction sequence given below, the correct statement is and are. अब अगर पहले मैं PQRS को बना लूं तो ये स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना हमें इजियर होगा. तो लेट अस स्टार्ट.
ओरिजिनल स्ट्रक्चर इज ऑफ साइक्लिक एस्टर और ये वेज पर CH2PH बनाकर दिया गया है। इसकी रिएक्शन कराई गई है LiAlH4, इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। और अगर ये रिडक्शन रिएक्शन है तो मैं ये वेज, ये PH CH2 CH2OH CH2 CH2OH CH2 CH2OH. Okay, please excuse me with this writing. These digital board have that extra sensation. So CH2 CH2OH, this is my P, and you can see now this sense of chirality is of no importance because CH2 CH2OH दोनों तरफ आ रहा है. So P is optically active. No, ये ऑप्शन तो देखते ही हम अभी मना कर देते हैं. अब इसकी रिएक्शन, इस P की रिएक्शन दो रास्ते पे ले जाई जा रही है. एक है CrO3 H2SO4 और बाद में सोडा लाइम है ही, तो जोन्स रिएजेंट की बात कर रहा है. कायरलिटी का आप कोई अर्थ है नहीं, तो CH2COOH CH2COOH, this should be Q. After this, it is again soda lime decarboxylation, NaOH CaO heat. So it will be PH CH2 CH CH3 and CH3. आप सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन जब करेंगे तो ये दोनों CO2 Na2CO3 बनकर हट जाएंगे. So we'll have PHCH2 CHCH3 CH3. ये है हमारा स्ट्रक्चर फॉर R. ओके, Q और R से लेकर कोई क्वेश्चन है? यस, Q gives effervescence with NaCO3. That is correct. It will give, as it is carboxylic acid. R is an alkyne. No, R is not an alkyne. It is simply मतलब substituted benzene, right? It is not an alkyne. So D option तो गलत है. B को और चेक कर लिया जाए. S gives Bayer's reagent test. Well, let us see. H2SO4 टेम्परेचर दिया है 443, मेरे ख्याल से 170 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, विच इज वेरी मच सूटेबल फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स. ये टेम्परेचर स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स को ध्यान में रखकर दिया गया है. CH2CH. ओके, एंड इफ इट इज सो देयर विल बी, अगर मैं सिंपल E2 की बात भी करूं, आगे दोबारा उसमें और स्ट्रक्चर चेंजेस क्योंकि रीअरेंजमेंट तो होंगे, लेकिन अगर उसकी बात ना भी करूं तो इस स्टेज तक अल्कीन तो बनना ही है ना. इट कैन अगेन ऐड H+, रीअरेंज, फिर एक कॉन्जुगेशन यहाँ आएगा. बिल्कुल पॉसिबल है कि फर्दर अगर इसमें, क्योंकि H+ हीट है, कंडीशन सूटेबल है, तो डेफिनेटली ये रीअरेंज करेगा to something which is like this. एक conjugated system S के तौर से बनना चाहिए. और क्योंकि ये अनसैचुरेटेड सिस्टम बन रहा है, दो डबल बॉन्ड है उसके पास, तो डेफिनेटली बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, क्या होता है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, विच इज कोल्ड वेरी डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 का सोल्यूशन अगर हम इन अल्कीन्स में ऐड करेंगे तो KMnO4 इनको हाइड्रोक्सिलेशन करते हुए खुद का डीकलराइजेशन करेगा, है ना. उसका अपना जो पिंक कलर है वो गायब हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा. सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 शुड बी कंक्लूडेड एज B and C. Absolutely correct. Let's move to next question. तो सेक्शन 3 इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो फिजिकल केमिस्ट्री से हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड वी हैव टू गिव द आंसर अप टू 2 decimal place. We can truncate or round off to give the answer, right? So let us start with the first question. Question number 9. The density of
the metal in gram per centimeter cube, which forms CCP lattice with an axial distance edge length equals to 400 picometer is the atomic mass of the metal is 105.6 AMU and Avogadro constant is 6 into 10 to the power 23 per mole. So very simple question, formula based question hai. Density, whenever we are writing, be careful about the units. They are asking that density of this metal should be in gram per centimeter cube. So that can be written as mass of unit cell. Mass of unit cell, since it is CCP, there are 4 atoms per unit cell. And this is the mass of one atom because it is given in AMU. So we can write that mass of one atom in gram is 105.6, right? Divided by, if I am writing this in gram, then I have to divide it by Avogadro number, right? Or we can say that this is mass of one atom, which is 105.6. 1 mu is 1 upon Avogadro, right? So this whole thing will be in gram divided by, since it is cubic crystal, so volume of unit cell will be A cube. तो अगर हम इसमें डेटा रखते हैं, if we put the data over here, so 4, this is 105.6 divided by Avogadro number. Avogadro number is 6 into 10 to the power 23. एज लेंथ की वैल्यू दे रखी है 400 पिकोमीटर, राइट? तो 400 पिको का मतलब हो गया 10 टू द पावर -12 मीटर. अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वी शुड मल्टीप्लाई दिस बाई 100. तो दिस इज सेंटीमीटर होल क्यूब, राइट? तो यहाँ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब. सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस, this will be 4 to the power 3 and this is 10 to the power -24 और यहाँ पे 10 to the power 23 है तो 10 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 64 आ जाएगा, राइट? So if we further simplify, the simplification is very calculation is very simple. इसमें आप देख लो 4 into 105.6 into 10 divided by 6 into 4 into 4 into 4. तो एक 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 1056, सो 1056 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 इंटू 4. 4 से इसको डिवाइड कर दो, दिस इज 264 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4. अगेन 4 से डिवाइड कर दो, दिस इज 66 डिवाइडेड बाई 6. सो द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी 11. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का, कैलकुलेशन भी आसान है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है. द सॉलिबिलिटी ऑफ बेरियम आयोडेट in an aqueous solution prepared by mixing 200 ml of 0.01 molar barium nitrate with 100 ml of 0.1 molar sodium iodate is x into 10 to the power -6 mole per liter. Decimeter cube is liter. The value of x is, solubility product of barium iodate is 1.58 into 10 to the power -9. तो पहले हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते. जस्ट आफ्टर मिक्सिंग we will write that what is the concentration, right? Just after mixing मतलब अभी precipitate वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा. Just after mixing we should write that what is the concentration of different chemical species present in this solution. तो हमारे पास बेरियम नाइट्रेट है. बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला वी कैन राइट BaNO3 होल ट्वाइस एंड इनिशियल कंसंट्रेशन इसका दे रखा है. मिक्स करने पे वॉल्यूम ऐड कर देते हैं. So if I write what is the final concentration on mixing when reaction is not, precipitation is not taking place, millimoles will remain same, right? So 200 into 0.01 divided by total volume in ml is 300. तो इसको मैं लिखूंगा तो आराम से लिख सकता हूँ 2/3 into 0.01 capital M. This is molarity of barium nitrate just after mixing. और सोडियम आयोडेट NaIO3 इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? So 100 into 0.1 divided by 300. So this is 1/3 into 0.1 capital M. Now we'll check that कि ये जब मिक्स किया गया है आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा है या नहीं है. If it is more than precipitate is going to form. So if I write that what is the ionic product, ionic product अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो that is equal to, because बेरियम आयोडेट है, बेरियम आयोडेट का फॉर्मूला होगा BaIO3 होल ट्वाइस, BaIO3 होल ट्वाइस
इसके लिए अगर आयनिक प्रोडक्ट लिखेंगे दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम प्लस 2 आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ IO3 माइनस आयन का होल स्क्वायर। बेरियम 2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन इस बेरियम नाइट्रेट के कंसंट्रेशन के बराबर, दैट वी कैन राइट हियर 2/3 इंटू 0.01 and the concentration of IO3 minus ion is 1/3 of 0.1। तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वी कैन राइट दैट आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4/27 इंटू 10⁻⁻⁴। और जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ तो विल से दैट आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो प्रेसिपिटेट इज गोइंग टू फॉर्म। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। सो वी शुड राइट द रिएक्शन दैट बेरियम 2 प्लस आयन एंड 2 times of IO3 minus ion will combine to form the precipitate. So initially the concentration just after mixing of barium 2 plus ion is 2/3.01 capital M and that of IO3 minus is 1/3.1। हमें यहाँ दिख रहा है साफ साफ क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 10⁹ divided by 1.58। when the value of equilibrium constant is very large, reaction will complete in forward direction, equilibrium will establish from backward direction। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो बेरियम 2 प्लस आयन है, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो वी शुड राइट दैट दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड, यहाँ सॉलिड बन जाएगा, इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो वी कैन राइट हियर दैट कि इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगा इसका 0.1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x, राइट। तो 2x यहाँ पे लिखेंगे तो दिस वैल्यू विल बी 4/3 इंटू 0.01। बैकवर्ड डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है तो यहाँ प्लस 2x और लिखना चाहिए था, वो हमने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू सिंस रिएक्शन इज मूविंग वेरी लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट बेरियम 2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन x है, यहाँ पे 2x को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। Now we can apply the concept that KSP is equal to concentration of barium 2 plus ion into concentration of IO3 minus ion whole square। KSP की वैल्यू ये है, बेरियम 2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो x है एंड IO3 माइनस आयन का कंसंट्रेशन फ्रॉम हियर इफ वी सिंप्लीफाई दिस इज कमिंग 0.06 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 0.02, सो 0.02 होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बेरियम 2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन आता है 1.58 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻5 एंड वी हैव टू राइट as x into 10⁻⁻6। so this is 15.8 divided by 4x की वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दिस वैल्यू इज कमिंग 3.95 वैल्यू आ रही है, राइट। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। एंड कई बच्चे जो है वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे वाई दे आर आस्किंग व्हाट इज द सॉलिबिलिटी, बिकॉज हियर वी कैन अज्यूम दैट कि इट इज अ मिक्सचर नाउ आफ्टर द रिएक्शन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेरियम आयोडेट एंड NaIO3, बिकॉज अभी यहाँ पे IO3 बचा हुआ है और हमने Na+ तो सॉल्यूशन में एज इट इज है, तो NaIO3 एंड BaIO3 होल ट्वाइस का ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एंड बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ बेरियम iodate is going to decrease, or we can say all the barium 2 plus ion is coming from this salt, so that's why we have calculated barium 2 plus ion concentration। barium 2 plus ion का concentration जो है वो salt की solubility के बराबर होगा। so from here we are getting that the answer is 3.95। moving to the next question, तो ये जो है surface chemistry का question है, adsorption isotherm, Frederick adsorption isotherm, right, and that Frederick adsorption isotherm is valid for adsorption of gas on the surface of solid, और चारकोल के सरफेस पे किसी सॉल्यूशन से सॉल्यूट पार्टिकल आके एड्सॉर्ब हो जाए। सो आई थिंक दैट दिस इज रिलेटेड टू एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम अ सॉल्यूशन, राइट। तो दोनों ही केसेस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x/m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k एंड प्रेशर की जगह हम यहाँ कंसंट्रेशन लेंगे टू द पावर 1/n। यहाँ पे फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हम फाइंड आउट करते हैं कि
as we change the temperature, the value of K and N is going to change. As we change the solute, the value of K and N is going to change. As we change the solvent, the value of K and N is going to change. So the value of K and N depends on three factors: temperature, nature of the solute, and nature of the solvent, right? So here अगर हम दोनों तरफ log ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कि this is log x by m is equal to log k plus 1 by n log c. और जो डेटा दे रखा है इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये इन्होंने दे रखा है कि फ्रेडलिक एट अ गिवन टेम्परेचर फ्रॉम 10 मिलीग्राम पर ग्राम and 16 milligram per gram aqueous phenol solution, the concentration of the adsorbed phenol are measured as. तो यहाँ पे जो है this is the mass of the adsorbate adsorbed on the adsorbent, right? तो ये डेटा इन्होंने दे रखा है कि that is 4 milligram. पहले सैंपल में 4 milligram when the concentration of phenol is 10 milligram per gram, right? तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ कि log जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है दैट इज इक्वल टू 4 मिलीग्राम पर ग्राम. ऑन द राइट हैंड साइड आई कैन राइट दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log c. c में यहाँ फिनॉल का कंसंट्रेशन लिखना है, दैट फिनॉल कंसंट्रेशन इज 10, राइट? तो यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करके log k की वैल्यू भी लिख सकते हैं, राइट? अभी ये एक इक्वेशन है, वी कैन से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दूसरा डेटा भी रखते हैं log. Now the adsorption is 10 milligram per gram when the concentration of phenol in the solution is 20. concentration अगर 16 है तो adsorbed x by m की वैल्यू जो होगी वो 10 है, right? So this is equation number 2. Now by solving equation number 1 and 2, अगर मैं यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस कर देता हूँ, इफ आई डू लाइक दैट देन आई कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकता हूँ मैं log 10/4 और यहाँ log के कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1 log 16/10 राइट? तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. log 10 इज 1 minus log 4 is equal to 1 by n and this value will be log 16 minus log 10. log 10 की वैल्यू जो है वो 1 होगी. we can directly write here the value of log 10. log 10 की वैल्यू 1 लिख देते हैं. तो this is 1 और इन्होंने यहाँ पे log 2 की वैल्यू दे रखी है, बेस 10 है तो that is 0.3. we have to use that. तो by using that I can write that ये 2 log 2 है तो ये 0.6 हो जाएगा. दिस इज 1 by n और इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा log 2 to the power 4. so 4 times of 0.3 is 1.2, so 1.2 minus 1. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं वी कैन राइट दैट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4, या हम इस कह सकते हैं कि n की वैल्यू जो है वो हाफ है. द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू हाफ, राइट? तो एक बार n की वैल्यू आ गई, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट. हमें ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x by m. so I am using this log equation. log x by m is equal to log k plus 1 by n. we can write that 1 by n की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी. n की वैल्यू हाफ है तो 1 by n की वैल्यू जो है वो 2 होगी. log when the concentration of the phenol right, we have to calculate at this temperature the concentration in milligram per gram of adsorbed phenol from aqueous solution of phenol, right? so the concentration of phenol is given here, that is 20 milligram per gram. ये दे रखा है इन्होंने, right? so this is the concentration they have given. this is equation number 3. now what we can do, we can subtract equation number 1 from equation number 3. अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी कैन राइट हियर. देखिए जरा 3 minus 1 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो दैट वी कैन राइट log x by m minus log k is equal to 1 by n log 20/10, राइट? ये हमने log
के टर्म्स में वैल्यू लिखी बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 3 जो है दिस इज द इक्वेशन 3। वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो log x by m माइनस log 4, log x by m माइनस log 4 इज इक्वल टू 1 by n कॉमन ले लिया, दिस इज log 20 और यहाँ पे जो है वो log 10 है, so log 20 upon 10. So if we simplify from here, we are getting that the value of log x by m is equal to log 16, and from there we can say that x by m is equal to 16. तो सिंपल क्वेश्चन है, बट जिन लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ा है, फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को पढ़ा है, उनके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, राइट। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड क्वेश्चन है। एट 300 केल्विन an ideal dilute solution of a macromolecular molecule exert osmotic pressure that is expressed in terms of height h of the solution. Density of the solution is given where h is equal to 2 centimeter if the concentration of the dilute solution of the macromolecule is 2 gram per decimeter cube. The molar mass of the macromolecule is calculated to be x into 10 to the power 4 gram per mole. The value of x is the universal constant is given and the acceleration due to gravity is given, right? तो हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू रो जी एच, एक तो ये तरीका है, या हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो जब हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो ये सारी जो वैल्यूज होनी चाहिए वो एसआई यूनिट होनी चाहिए, यहाँ भी जो वैल्यू होनी चाहिए वो एसआई यूनिट होनी चाहिए। तो द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले हमें ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, सो दैट इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। जैसे वाटर की डेंसिटी को हम kg पर मीटर क्यूब में लिखते हैं वैसा ही है ये, राइट। तो दिस इज अबाउट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जी की वैल्यू दे रखी है, वी हैव टू टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लिखेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 कैपिटल M। तो ये सारी एसआई यूनिट हो गई। इसी तरह से जब हम मोलैरिटी की वैल्यू लिख रहे हैं, अभी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दे हैव गिवन, the concentration of the solution they have given in 2 gram per liter, right? इसको पहले हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट से डिवाइड करेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हो गया मोल्स पर लीटर। दिस इज इन मोल्स पर लीटर, बट दिस इज नॉट द एसआई यूनिट। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां हम एसआई यूनिट यूज करते हैं। तो मोलैरिटी को अगर हम SI यूनिट में लिखें तो दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई m इंटू 1000 एंड दिस इज इन मोल पर मीटर क्यूब। ये जो वैल्यू होगी वो मोल पर मीटर क्यूब में होगी। टेम्परेचर वी हैव टू राइट इन केल्विन, टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन। नाउ वी कैन पुट दिस डेटा, क्योंकि यहाँ भी हमने वैल्यूज SI यूनिट में रखी है, यहाँ भी हम SI यूनिट, R की वैल्यू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, ये SI यूनिट में ही है। सो इफ वी पुट देन वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द मोलर मास। तो अब अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं, इफ वी आर पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट, ये डेंसिटी हो गया, ये G है, ये मीटर में हमने H की वैल्यू रख ली, दिस इज द मोलैरिटी इन मोल पर मीटर क्यूब, दिस इज R एंड दिस इज द टेम्परेचर। तो ये बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। 10 टू द पावर 3 लेफ्ट और राइट कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 1/10। So molar mass is equal to 8.3 into 3000. If we simplify this, ये multiplication भी बड़ा आसान है, 24.9 into 10 to the power 3 gram per mole. But we have to write the answer as x into 10 to the power 4 gram per mole. तो x की वैल्यू क्या होगी? From here we can say that the value of x is equal to 2.49. तो अगेन लिक्विड सॉल्यूशन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, डुएबल क्वेश्चन है, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और वी कैन से थर्मोडायनेमिक्स भी यूज हो रहा है, राइट? सो thermochemistry it is going to use here. So an electrochemical cell is fueled by the combustion of butane at 1 bar. 1 bar मतलब standard pressure, right? And 298 Kelvin. Its cell potential is x by f into 10 to the power 3 volts.
where F is the Faraday constant, the value of X is, X की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है, राइट? तो सबसे पहले तो हमें ये रिएक्शन लिखनी चाहिए, कंबस्शन रिएक्शन फ्यूल सेल में क्या होगी, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10, इट इज इन गैसियस स्टेट रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, कंबस्शन रिएक्शन लिखनी है हमें. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 mole of 4 mole of carbon dioxide, 4 times of CO2 in gaseous state, and there is formation of 5 molecules of H2O in liquid. क्योंकि रूम टेम्परेचर 298 है तो वाटर लिक्विड स्टेट में होगा. इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 13 है तो वी शुड राइट हियर 13/2. so this is the balance reaction. now they are talking with respect to 1 mole of butane, इसका 1 मोल तो इसका 13/2 मोल, उसके 4 मोल और 5 मोल of H2O is going to form. So for this, if I write that what is delta G naught of the reaction, we can write summation delta G naught formation of product minus summation delta G naught formation of reactant. O2 जो है elemental form में है, most stable state of aggregation, delta G naught formation of O2 is going to be 0. That's why it is not given. So we can write that this is equal to 4 times of delta G naught formation of carbon dioxide in gaseous state plus 5 times of delta G naught formation of H2O in liquid state minus delta G naught formation of butane in gaseous state, C4H10 in gaseous state. And they have given the value for all these, right? तो अब अगर हम value रख देते हैं इसमें तो we can write that delta G naught of this reaction is equal to 4 into delta G naught formation of CO2 is minus 394 plus 5 times of delta G naught formation of H2O. H2O की delta G naught formation है minus 237 minus 18. और इसको अब अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे then we can write that delta G naught of this reaction is equal to minus NF E naught of the cell. And we have to calculate because the cell is working under स्टैंडर्ड कंडीशन, तो ये ई नॉट सेल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इस पूरी बैलेंस रिएक्शन में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, राइट? सो इफ वी कैलकुलेट एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड हैं, सो इफ आई कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिएक्शन दैट इज 13/2 इंटू 4, 26 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो n की वैल्यू जो है वो 26 होगी. वी हैव टू राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ फेरेडे कांस्टेंट, राइट? तो इसको तो f ही लिखते हैं. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई नॉट. सो वी कैन राइट दैट ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू, बी केयरफुल अबाउट द यूनिट, जब हम ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो किलो जूल में होगी. तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट विल कम, वी शुड मल्टीप्लाई दिस बाई 1000 सो दैट इट इज इन जूल पर मोल. एंड इसको हम 26 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे माइनस साइन आएगा. एंड फैराडे कांस्टेंट, फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज ई नॉट ऑफ द सेल. तो अभी अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो वी कैन राइट दैट 4 इंटू माइनस 394 इज माइनस 1576, 5 इंटू 2 माइनस 237 इज माइनस 1185, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया. इसको सिंप्लीफाई करने पे डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू आ रही है माइनस 2743. सो नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. 2743 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग दैट इज 26 into 10 to the power 3 divided by Faraday constant. So now if I calculate this value, they are writing that x by f into 10 to the power 3, right? तो ये तो कॉमन है, हमें केवल इसको सॉल्व करना है. 2743 को अगर मैं 26 से डिवाइड करूंगा, आई एम गेटिंग दिस वैल्यू 105.5. So the answer for this particular question is 105.5. अगेन थोड़ा सा पेशेंस से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इट्स ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. द सम ऑफ द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर्स मैग्नेटोन ऑफ MnBr6 3- एंड MnCn6 3-, राइट?
तो एक वीक फील्ड लिगेंड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दोनों में ही मैग्नीज जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. इफ आई राइट MnBr6 3-, so from here we can write that manganese is present in +3 oxidation state. मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d5,4s2. अगर हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं तो Mn3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d4,4s0. सो हियर डेल्टा नॉट is less than mean pairing energy because of this weak field ligand. So we can say that if we find out the number of unpaired electrons by using CFT, तो ये Eg ऑर्बिटल हो गया, ये T2G ऑर्बिटल हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. पहले हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4. So from here if we calculate what is magnetic moment, that is equal to n+2 Bose magnetone, where n is the number of unpaired electrons. तो अगर इसको लिखते हैं तो that is equal to 4 into 6. So that is equal to √24 Bose magnetone. We can simplify this. दूसरे वाले की अगर हम बात करें, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है MnCN6 3-. Again the manganese is present in +3 oxidation state. So electronic configuration will be 3d4,4s0, right? 3d4,4s0. T2G और Eg में अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन मीन पेयरिंग एनर्जी. यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले ये Eg जो है T2G फिल होगा. T2G ये है और Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. So there are 2 unpaired electrons. From there we can calculate that what is the magnetic moment in this complex. So that is equal to √2 and 2 + 2 will be 4. तो ये √6 है. This is √6 Bose magnetone. They are asking that what is the sum. इन दोनों का अगर हम sum लिखते हैं, sum of magnetic moment of these two complexes. So we should write this is √6 plus √24, right? Sorry, this is √8 not 6. ये √8 है. So if I take √8 common over here, I am going to get this will be √3. This value will be √3. So √8 can be written as 2√2, or 1 √3 is 1.732. So we can write that this value is equal to 2 times of 1.414, और ये वैल्यू होगी 2.732. कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा इसमें जल्दबाजी दिखाएंगे, हम रूल यूज कर लेंगे. दे कैन यूज दैट 4 अनपेयर्ड हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4.8 होना चाहिए, 2 अनपेयर्ड हैं तो 2.8 होना चाहिए. बट क्योंकि हमें 2 डेसिमल तक आंसर लिखना है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कैलकुलेशन की वजह से ही तो आपको नंबर मिलेंगे, राइट? तो डोंट बी इन हरी, राइट? आंसर आपको पता है, फिर भी आप जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में आप हो सकता है कि आपको नंबर ना मिले, राइट? सो यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन. ये वाली कैलकुलेशन आपको प्रॉपरली करनी है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें क्या कर सकते हो कि 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कर सकते हो. तो 2.83 और यहाँ पे 2.73, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज इफ यू डू द कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ रही है 7.726. इसको अगर हम कट ऑफ करते हैं तो 7.72 आएगा. अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो इट इज 7.73. तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है? अब ये जरूर हो सकता है कि जेई एडवांस में इसके लिए थोड़ी बहुत रेंज दे दी जाए, जो इससे थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में और उससे थोड़ा राइट हैंड साइड में मिल जाए, राइट? बट यू शुड नॉट डू द क्वेश्चन इन हरी, बिकॉज क्वेश्चन तो सभी को पता है, आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के ही नंबर है, right? So they are checking and they are saying that up to 2 decimal place we want the correct answer, right? तो थोड़ा सा आप इसमें टाइम लगाओगे तो you will get this answer. Let us move to question number 16. I think 16 question number जो है वो organic chemistry का है. So the last question of paper 2 JEE Advanced 2025, beautiful question I must say. बहुत ही बेसिक, बहुत आपके फंडामेंटल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को चेक करता हुआ,
बट बेहतरीन क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? अ लीनियर ऑक्टासेकेराइड. ऑक्टासेकेराइड मतलब 8 मोनोसेक्राइड्स जो है वो बॉन्डेड हैं. ओके, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. उसका टोटल मोलर मास दिया है 1024 ग्राम पर मोल. ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 3 monosaccharides. 3 types they are saying. One is ribose, second is 2-deoxyribose, and third is glucose. The amount of 2-deoxyribose formed is 58.26% weight by weight of the total amount of the monosaccharide produced in the hydrolyzed product. Hydrolysis के बाद जो मास है उसका 58.26% वेट बाय वेट जो है वो हमें 2-deoxyribose को असाइन किया हुआ है. The number of ribose units present in one molecule of octasaccharide is. आपको पता होगा कि जो भी काउंट ऑफ सेक्राइड आता है, आई मीन लाइक ऑक्टासेक्राइड कहा गया है या डाइसेक्राइड जब बनता है तो जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है ना, तो वो बेसिकली एक ईथर लिंकेज के ही तरीके का होता है. और अगर हम उसका बनने के तरीके को देखें तो एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होता है वो एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर रहा है. पर क्या बना, 2 सेकेराइड जुड़े तो एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की जरूरत पड़ी. 10 क्यों, 8 मोनोसेक्राइड कनेक्ट किए गए हैं. सो देयर मस्ट बी 7 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस, राइट? सो आई हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि हमें कहा गया है ना हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट इज 1024 प्लस वाटर पर कितना, 7. हमें सिर्फ 7 ही मोल्स ऑफ वाटर ऐड करने होंगे क्योंकि 8 मोनोसेक्राइड कनेक्टेड हैं तो 7 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस बने हैं. आप जब इसे सॉल्व करते हैं, मैंने सॉल्व कर रखा है, तो दिस इज कमिंग 1150 ग्राम्स. ओके, अब इस पर्टिकुलर हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट का 58.26% जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, 2-deoxyribose. मास भी आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया. तो पहले मैं 58.26% ऑफ हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट कैलकुलेट करती हूँ. वो कितना आ रहा है, 58.26 अपॉन 100 इंटू 1150. इसको आप सॉल्व करते हैं तो इट इज कमिंग 669.99 ग्राम्स. ओके, हम रफली इसे 670 ग्राम्स की बात करें. ये क्या है, ये 2-deoxyribose है. अब मुझसे यूनिट्स ऑफ 2-deoxyribose कैलकुलेट करना हो तो मास तो मुझे पता चल गया है कि इट इज 669.99 और उसका मॉलिक्यूलर मास हमें 134 दिया हुआ है, राइट? आप इसे रफली 670 बाय 134 से सॉल्व करें, इट इज कमिंग 5 units. So out of the 8 total monosaccharides in the given octasaccharide, 5 units are of 2-deoxyribose. Is that absolutely clear? 8 में से 5 units आपकी 2-deoxyribose हो गई. अब जो 3 units बची है उनमें क्या और कैसा, उससे हम आंसर निकाल लेंगे. तो 1024 जो हमारा टोटल था उसके अंदर 5 यूनिट्स ये हैं, ठीक. और हाइड्रोलाइज्ड टोटल मास क्या है आपका, 1150. तो अब मैं कह सकती हूं कि रेस्ट 3 यूनिट्स, ओके, हैव 2 पॉसिबिलिटीज, हैव 2 कॉम्बिनेशंस. कौन सी,
2 ग्लूकोज एंड 1 राइबोस, ये भी हो सकता है, या फिर 1 ग्लूकोज एंड 2 राइबोस, ये भी हो सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब हमारा टोटल मास था 1150, राइट, और उसमें से 670 इसने ले लिया 2 डीऑक्सीराइबोस। तो रेस्ट मास कितना है? रेस्ट मास है मेरे पास 1150 माइनस रफली मैं 670 की बात कर लूं, है ना, तो 15 माइनस 7 8, राइट, आई एम लेफ्ट विथ 480 ग्राम्स। मेरे पास कितना मास बच रहा है? 480 ग्राम्स। अब इस 480 ग्राम्स को कौन सी कॉम्बिनेशन जस्टिफाई करेगी, बस इतना ही मुझे चेक करना है। अगर मैं 2 ग्लूकोज ले लेती हूं तो 360 इज ग्लूकोज एंड 150 इज राइबोज। 360 प्लस 150, क्योंकि ये टोटल 480 पर आना चाहिए, ये सर्टनली नहीं आएगा 480 पर, ये एक्सीड कर रहा है। वहीं अगर मैं 1 ग्लूकोज और 2 राइबोज ले लेती हूँ तो ये एग्जैक्टली 480 पर ही आ रहा है। इट मीन्स द कॉम्बिनेशन which is present is 1 glucose and 2 ribose in the octasaccharide. The question is number of ribose units present in one molecule of octasaccharide is, answer is 2. Answer for this question is 2. So it is a beautiful question. Concepts अगर पता हो तो आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका भी हम टोटल कर दें, है ना, तो 6 and 5 is 11, 3 4 5 5 10 आ रहा है, हमें 480 चाहिए। दैट इज वाई वी आर रिजेक्टिंग दिस कॉम्बिनेशन। सो आई वुड सजेस्ट दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। और अगर आपको बेसिक ऑफ मोनोसेक्राइड कैसे रिएक्ट करते हैं क्या पता हो तो कोई खास दिक्कत इस सवाल में है नहीं, ठीक। एनी हाउ पेपर 2 थोड़ा सा ट्रिकी और बेटर था पेपर 1 से, but still both the papers are very much in the range of the syllabus, no disputes, no problems, a slight printing error in paper 1 of SOCl2 SO2Cl2 but can be neglected, nothing of much concern, right? अगर आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट करें और अपने आसपास उसे प्रोपगेट करें, ठीक। जाते जाते हमारे इस वीडियो पर लाइक बटन लगा कर जाएं, हिट करके जाएं। अगर कुछ कमेंट आप समझते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में ज़रूर अपने ओपिनियन शेयर करें। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then, take care. Bye bye. Thank you.